Hi all, this is Dr. Mayuresh Mahajan and I welcome you all. And today's topic is Argenticum nitricum, a very wonderful remedy, a very orthodox and a very well proven remedy, a deep acting remedy. And I will be coming up along with Dr. Vishakha. Vishakha will be coming up with a wonderful case of Argenticum nitricum. And please don't miss the last part of this video because I will be explaining the rubric escape attempts to window from. No, let us understand what is the window of Argenticum nitricum. How does Argenticum nitricum want to get out of a situation when he's trapped in a situation wherein there is so please don't miss the last part. So welcome you all once again. Thank you. Just be. Hi all, this is Dr. Mayuresh Mahajan and I'm very sorry that I'm coming late nowadays because I'm busy in Insta shorts. क्या बोलते तुम लोग? Insta reels. YouTube Insta reels and YouTube shorts. So बीच में थोड़ा late होगा. Please don't mind. And today we have a special speaker in front of you and she is Dr. Vishakha Vazalwar from Dombivli, Palawa. Vishakha, please can you introduce yourself? Yes, myself Dr. Vishakha Vazalwar. I have been practicing homeopathy since 12 plus years in Dombivli and joined HHF in 2017. Since 2017 I am being in HHF. क्या बात है, क्या बात है. So today she will be narrating a case and let us understand how we understand a case and in short, Vishakha, and how to explore a remedy. After narrating her case, I'll explore the remedy, everything. Let us understand and enjoy. Bolo, Vishakha, bolo, bindas. So one fine morning I got a call and patient came with all of his IPR. Patient was aged 26 साल का लड़का था, मतलब जो सारे IPR सबको लेके आए थे, मतलब एक पेशेंट के पीछे 3 लोग. No, this is very important. एक पेशेंट आता है 26 साल का, उसके आगे पीछे 3 लोग थे. Important. 3 लोग थे, yes. और मेनली उसका ये था कि he was suffering from some anxiety issues with sleeplessness. नींद ही नहीं आती है या फिर कुछ काम नहीं करने का मन करता है, बस बैठे रहता हूँ, सोच में रहता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स. कॉन्फिडेंस भी नहीं है. कॉन्फिडेंस नहीं. 26 years old doing nothing basically, sitting at home idle. PQRS. Animal sir already said PQRS. देखो. Doing nothing is not important. 26 साल का बच्चा कुछ नहीं कर रहा है. Doing nothing, yes. Yeah. And आने के बाद भी complaints उसकी मम्मी बता रही थी, वो नहीं. मम्मी was narrating the शर्म complaints. की वजह से कि कॉन्फिडेंस नहीं, confidence मतलब he was just sitting and biting nails. Very important gesture. Sitting, yes. तो then I need to stop. Mother उसको पूछा तो बोल रहा था कि सब कुछ ट्राई कर लिया मैंने, हर किस्म का काम करके देख लिया, बट मुझे पता है मैं कर ही नहीं पाऊंगा. तो मैं करता हूँ थोड़े दिन 10-15 डेज के लिए, देन आई स्टॉप. फिर पापा बोलते हैं नया कुछ कर ले, ये ट्राई कर ले, ये नहीं तो ये ट्राई कर ले. बिकॉज बैकग्राउंड में फाइनेंशियल इसमें कोई कमी नहीं है, जो चाहिए जितना चाहिए उतना कर, कोई हरी वरी नहीं है. बट स्टिल ही इज लाइक कि मैं नहीं कर पाऊंगा. 15 दिन जाता है, कुछ करता है, फिर से छोड़ देता है, नहीं ये नहीं, कुछ और जॉब करेगा, 15 दिन करेगा, वो भी छोड़ देगा. सो इस सब से ना आजू बाजू वाले भी अभी इसको बोलने लग गए थे, घर वाले भी बोलने लग गए थे कि यार तू अभी थोड़े दिनों में तेरी शादी होगी तो कैसे क्या करेगा फिर तू? तो इस वजह से IPR ज्यादा वरीड था. IPR is for the new people. IPR is interpersonal relationship. For example, मैं पेशेंट और मेरे आजू बाजू में जो भी लोग हैं उनके साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा है. तो मेजरली यही उनके कंसर्न थे. और ये कि मम्मी का तो बोलना यही था, बस ये कुछ काम करने लग जाए और कुछ नहीं. क्या अपेक्षा है मम्मी का? बेसिक अपेक्षा है, बेसिक, ताकि इसकी शादी करा दो. बस दिस वाज एक छोटा सा केस. हाँ, एक मेजर ये था कि ये सब शुरुआत कैसी हुई थी कि उसको इंजीनियरिंग नहीं करना था लेकिन जबरदस्ती एडमिशन दिला दी. तो सेकेंड ईयर में AT-KT लग गई, सेकेंड सेमेस्टर में. तो वहां से सब चालू हो गया. उसने छोड़ दिया, इंजीनियरिंग छोड़ दिया. फिर उसने आर्किटेक्चर ज्वाइन किया. आर्किटेक्चर जैसे तैसे कंप्लीट किया, लेकिन उसमें आगे कुछ नहीं किया. वापस अभी यही साइकिल, वहां से
कुछ कर रहे छोड़ रहे, कर रहे छोड़ रहे, यही चल रहा है. सो Oh, अभी ही that प्रिफर्स was डूइंग the- नथिंग. यस. सो कैसे क्या दवा क्या दिया, कैसा रूबी को? हाँ, सो इसमें ना सबसे पहले मुझे तो ये लगा कि ये ना कुछ करना ही नहीं चाहता है. मतलब यहाँ से मुझे ऐसे लगा बेड में ही कंफर्टेबल है. मतलब ठीक है, चल रहा है ना. वैसे भी कोई ये तो नहीं है कि मैं कमाऊंगा तो ही घर चलेगा. तो चल रहा है तो चल रहा है. तो मेरा एंट्री रूब्रिक तो बेड डिजायर रिमेनिंग था. बेड डिजायर्स टू रिमेन इन बेड, ऐसा रूब्रिक है Yes. जो, यानी बेड का मतलब हमारा कंफर्ट, यस, कंफर्ट से वो अपने निकल. कंफर्ट में बैठा है. अच्छा, ठीक है, ओके, वेरी गुड. यस. और हर 15 डेज में वो करना तो चाहता था. ही वाज विलिंग टू डू. बट वो जब भी काम पे जाता था दिमाग में ये नहीं कर पाऊंगा, नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा, नहीं होगा. कॉन्फिडेंस जीरो. जीरो कॉन्फिडेंस. जो बिस्तर पे बैठना चाहता है, कुछ हाँ. नहीं करना चाहता है, विथ जीरो Yes. कॉन्फिडेंस. यस, विद जीरो कॉन्फिडेंस. और फिर उसको यही सारे दिमाग में चलते रहते की अँटिसिपेशन. कल उद्या जायचं सकाळी ऑफिसला, तर आतापासूनच उद्या मी ते करू शकेल की नाही, कल होगा सुबह कि जा नहीं पाऊंगी. होगा, हाँ, मुझे yes. होगा कि नहीं होगा, कैन आई डू इट और आई Yes. कैन नॉट, आई वोंट, व्हाट. यस. Okay. तो ये 2-3 रूब्रिक लेके एक मेडिसिन. रूब्रिक बताओ मैडम हमको, कैसे हम लोग इसे यस. एंटिसिपेशन, एल मीन्स फ्रॉम एंटिसिपेशन. यही Right. चल रहा था उसका कि हर रोज जाके आने के बाद दूसरे दिन की तैयारी. कल क्या होगा, कल. सिंपल रूब्रिक क्या है? Yes. एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन. यस नेक्स्ट रूब्रिक. यस यस. और सबसे पहले एक ही था कि वो ना कोई भी छोटी चीज, अभी ऑफिस में कुछ हुआ तो बस उसका डर बैठ जाता था मन में. और दूसरे दिन वो वही सोचते रहता कि अब आज भी ऐसे ही हुआ तो कल के Fear. जैसा आज भी हुआ तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा? मैं Yes. मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ऐसे ही हूँ. फियर 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 फियर. ठीक है. और एक ये था मेन, उसके मतलब पेरेंट्स ने जो बताया था कि इसकी सिचुएशन की वजह से ना घर वाले भी उसको बोलने लग गए थे कि इतना बड़ा लड़का हो गया, कुछ नहीं कर रहे, सिटिंग आइडल. अभी 2-3 साल में इसकी आर्किटेक्चर शादी किया, करानी कुछ नहीं है, किया. कुछ नहीं. इंजीनियरिंग नहीं किया, आर्किटेक्चर में ऐसा कैसा किया, हाँ. जॉब लगा वो भी गया, तो ये तो कुछ ऐसे ही है, ऐसे ही है, ये ऐसे ही है. बोलने लग गए थे उसको. तो अरे एक बाप. बहुत अच्छा सा रूब्रिक है, repudiated relatives by his. ओके, वेरी गुड. सो ये पकड़ के रेप्यूडिएटेड रिलेटिव्स बाय, सब ध्यान में रखना. और दूसरा बेड डिजास्टर में 9 एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन. और एक कुछ रूब्रिक होगा जो काम ही नहीं जाते, उसके लिए कुछ रूब्रिक लिया. वर्क विल डू हार्म. आई वर्क शाबाश. विल डू हार्म. ऐसा रूब्रिक. उसको यही लगता है कि काम करूंगा ना वापस बीमार पड़ूंगा, उससे अच्छा घर बेस्ट में ही क्या है? बैठा हूँ. When we understand the mind section of a repertory, the best thing is what there are so many beautiful rubrics given in the repertory we don't even know. Now, delusion, work will do harm is a wonderful rubric. Means those who are understanding mind repertory for the first time, they will be amused with this rubric. But we apply it just daily, है ना, दिशागा? So, what is the follow up? कैसा हो गया, क्या हो गया? फॉलो अप ये था कि नाउ ही हैज कंप्लीटेड अ साइट. मतलब एक साइट उसने कंप्लीट करके नेक्स्ट साइट आर्किटेक्चर बात. किया था ना कंप्लीट. क्या बस this is- कुछ भी नहीं किया उसने. इसे कहते हैं होलिस्टिक क्यूर, जो हम लोग बोलते हैं, यस है ना? यस. शादी विधि होने के बाद हुआ कि नहीं शादी? अभी तो शादी नहीं हुआ है बट काम करने लग गया है. अंडरस्टैंड. एक बंदे को नॉर्मल लाइफ में डालना, इट्स अ बिग अचीवमेंट. माइंड, इट्स नॉट अबाउट व्हाट वी गिव, व्हाट मेडिसिन वी गिव, इट इज ऑल अबाउट व्हाट वी डू इन अवर लाइफ. इट्स नॉट अबाउट चेकिंग 100 पेशेंट्स अ डे एज अ होम्योपैथ. बट एक ऐसा केस निकाला ना, इधर लगता है. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू डू दिस. एंड वो जो हम लोग फील करते हैं, Yes. वो एक क्यूर का अंदर से एनलाइटनमेंट, वो आपको होना चाहिए. सो वी आर डूइंग आवर बेस्ट. सो द रेमेडी इज, आप बताइए. नहीं तू बोल. द रेमेडी गिवन वाज अर्जेंटम नाइट्रिकम. अर्जेंटिकम नाइट्रिकम. वाओ, सिल्वर नाइट्रेट. यस. अच्छा, कुछ अर्जेंटिकम नाइट्रिकम के बारे में बोलेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे. मैं भी डिस्कस करूंगा. यस यस. सो ये अर्जेंटम पेशेंट कैसे होता है ना, बेसिकली बहुत ही वीक होता है अंदर से. उसको ना उसकी वीकनेस ही नोज कि कहाँ मैं गड़बड़ करने वाला हूँ, तो इन सब चीजों से वो बचता रहता है. सो बचते रहने के लिए वो तो फेनिंग करता है. फेनिंग से वो बेड डिजायर में रहना पसंद करता है. मतलब कुछ तिकड़म लड़ाएगा कि कैसे बचूं मैं काम से, नहीं करूंगा. अगर मैच है मेरा
क्रिकेट का, और मुझे बहुत सारा प्रेशर दिया लोगों ने, अरे मयूर महाजन विल बी ओपनिंग द मैच, और मेरे को मालूम है कि सामने बहुत स्पीड एकदम पेसर है और मेरा फर्स्ट बॉल पे डांटा निकलने वाला है मेरा, और फिर मैं क्या करूंगा, ए मेरा हाथ दर्द हो रहा है, आज मैं बैटिंग नहीं करूंगा, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, नो नो मुझे दर्द होता है, तुझा 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 मेरे को नहीं हो रहा है। अंडरस्टैंड, एक एग्जाम्पल हम लोग ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक कैसी फेनिंग का मतलब क्या है ना, कि हमारे बीमारी का एक बहाना करके हमें जो चाहिए वो करवाना आईपीआर से इज फेनिंग, ऐसे किया ना। Yes, अभी yes. जैसे इस विशाखा टोल्ड सो वंडरफुली दैट this boy didn't want to go for this engineering, but the father pressurized and asked to pursue the course of engineering, very felt miserable. So what happens is, if I'm not able, I'm not focused, I'm not passionate about a thing, please don't do. मत करो ऐसा कुछ, नहीं तो फेलियर पक्का है। होम्योपैथी करना है तो होम्योपैथी प्रैक्टिस करना है तो दिल और पैशन से करो, नहीं तो फेलियर। अंडरस्टैंड? सो दिस अर्जेंटिकम नाटिकम इज अ वंडरफुल रेमेडी। एक एक्स्ट्रो, अभी जो इनका जो केस था उसमें वो जो टिमिड था, मुंह में उंगली डाल रहा था, बट अर्जेंटिकम नाटिकम is also has the second side of very vivacity, which I very very communicative. Hi doc is like this, but whenever there is lack of confidence, then he becomes like, oh my god, timidity appearing in public. Yes. How can I do? How can I go ahead? Absolute lazy, if I would call him. Just wanted to sit at one place, but this laziness कब और कहाँ से आता है is also very important. थोड़ा सा मैं हमारे बारे में बात करेंगे कि ताकि लोगों को समझ, जब तक मैं मेरा एग्जांपल नहीं देता लोगों को नहीं समझते, तो मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैं कैसे फेलिंग करता हूँ, मैं कैसे नाटक करके मेरा काम करवा के लेता हूँ, मैं कैसे एग्जाम के टाइम मेरे को मालूम था मैं फेल होने वाला हूँ, फेल नहीं होता था मैं कभी, हमेशा अच्छा मिलता, 75% मिलते थे मेरे को। तो माँ को कैसे बोलता था, मामा आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, तो मामा यूज्ड टू टेल मी, ओके बेटा डोंट वरी, सो जा, स्लीप यू बस स्लीप, या था। सो आई हैव अ रीजन, इफ आई गेट लेस मार्क्स, आई हैव अ रीजन टू टेल माय पेरेंट्स दैट बिकॉज माय head was aching like anything, I have a reason that I got less marks. This reasoning because of a disease is the feigning sick of Argenticum naticum. There is a rubric Argenticum naticum feigning sick, where there are so many remedies, but the cause of feigning of Argenticum naticum is performance. अरे नहीं होगा, मेरे को सर दर्द हो रहा है। अभी he also failed. फेल होने के बाद रीजन होना चाहिए, तो when क्या करना मुझे नहीं समझ में नहीं आता, आई एम कंफ्यूज, मुझे कुछ आता नहीं। व्हाट हैपेंस, दिस बॉडी एंड द माइंड स्टार्ट्स बिलीविंग दैट आई डोंट नो एनीथिंग, दिस बॉडी एंड द माइंड स्टार्ट्स गेट्स कन्विंस्ड कि आई डोंट नो एनीथिंग, देन दिस कंफ्यूजन goes on increasing, multiplying, and then his patient plans to state of that anxiety and everything. तो हुआ नहीं, मुझे कुछ आता नहीं होगा, नहीं होगा। In Argenticum naticum there is a rubric, fear of crossing the bridge. Yes. You can take any remedy. I was used to always wonder, fear of crossing the bridge. एक बंदे को why there would be a fear of crossing the bridge? यार, come on, there is a strong bridge. How can I have fear to cross that bridge? In maternity, I used to wonder what is this. Understanding is crossing a bridge is from one point to the next point. I'm here and my destination is over there, and I'm fearing that I am not able to attain that point because of lack of confidence. बीच में वो जो ब्रिज हो, what if the bridge breaks in between? What if anxiety, anticipatory anxiety of Argenticum naticum, and this lands him into trouble. This lands him into this, and then what happens if I'm not able to do anything? I'm not able to, my confidence is zero, I'm not able to do anything. What happens is the whole surrounding starts laughing at me. Hey, इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता. This is what happened exactly with her relative, that boy's relative. Yes. अरे इसको क्या आर्किटेक्ट पे क्या कर रहा है, इसको कुछ काम करना है. We have a rubric delusion repudiated by the surroundings or relatives, ऐसा कुछ rubric है. Let us understand, मैं हम लोगों ने aqua marina में भी repudiated लिया था, लेकिन उसका एक अलग मतलब था, मैंने और सुनील ने लिया था. जिन्होंने देखा नहीं, देखो उस aqua marina करके रेमेडी भी है. तो इसका repudiated क्या है? Repudiated
lack of trust, lack of confidence, and a small dislike with insult. ए चुप रे, तू चुप रे, ए तू का तेरे से कुछ नहीं होने वाला है, तेरे से कुछ नहीं, तू बे, तू मैं इसको. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इन अ फैमिली रेस्टोरेंट, हम लोग 6 लोग बैठे और मैंने मेनू कार्ड लिया, मैं क्या मंगाऊं, और अगले में तू कब, हाँ राहुल तू बोल, मेरे हाथ से निकल जाता है, तू तेरे को समझ में नहीं आता है, तू क्या को, और तू क्या ऑर्डर देगा. दिस इज रेप्यूडिएटेड, अंडरस्टैंड, फॉर अर्जेंटिकम नाइट्रिकम. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं. हम लोग घर पे फेस्टिवल होता था तो हमेशा आई यूज्ड टू टेल माय मॉम कि अरे मुझे भी लाना है. मेरे तो गणपति का जब फेस्टिवल होता था, हम वी नीड टू मेक मोदक. तो मैं मम्मी मैं लाऊंगा. तो मम्मी बोला हाँ ठीक है, जा लेके भाई 25 नारल लाया, अच्छा नारल ला लेके, हाँ मैं लो, हाँ. उधर से गया एकदम वट से गया और मैंने बोला रे 25 नारल दो, तो उसने दिया. सब सड़ा हुआ, ऑल रॉटन कोकोनट्स, 50% ऑफ द, एंड दैट टू वेरी कॉस्टली. See, the cost of one coconut is around 10 rupees. He charged me 15 rupees and all coconuts were like me, a coconut. तो rotten. तो पागल एक से क्या ऐसा होता था. तो मैंने लाया एकदम और मम्मी को दिया, देखा आई नारा अंडे. तो मैंने देखा क्या करके ले, क्या किया तू, ये सब सड़ेला, तुमको अक्ल है क्या? तो मैंने तो हो गया. तो नेक्स्ट ईयर when Ganpati festival arrived, everybody told me, अरे तू एक काम कर, तू सब्जी लेके आना, सब्जी लेके आ. कॉन्फिडेंस जीरो, एंटिसिपेशन, व्हाट इफ सडेला निकला तो. नहीं मेरे मम्मी मेरे को काम है, मैं बैठा हूँ अंदर, बेड डिजास्टर में नहीं बैठा घर पे, एसी लगा के. तुम लोग लेके, क्योंकि ऑलरेडी आई वाज रेप्यूडिएटेड. That plus confidence lack of, plus no courage, cowardice, anticipatory anxiety, and then what happened? बहाना करके नहीं, मेरे को सर दर्द हो रहा है, मेरा एसी में बहुत गर्मी हो रहा है, बेड डिजास्टर में फेनिंग से. एंड अगर मैं सब्जी लेने गया तो सर दर्द की वजह से मुझे अगर तकलीफ हुई तो delusion, sick being, because work will do him harm. अर्जेंटिकम नाइट्रिकम. मैं जब एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं नहीं हूँ अर्जेंटिकम, जस्ट एक आज यूजुअल तुम लोगों को एक एग्जांपल दे रहे हैं तो अच्छा लगता है इसलिए. तो दिस इज अर्जेंटिकम नाइट्रिकम. तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ रेमेडी विथ इट्स होल एक्सटेंट. तो व्हाट इज द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ अर्जेंटिकम नाइट्रिकम? एनीवन? Examination funk, hyper acidity. Absolutely, मुझे अभी भी अर्जेंटिकम नाइट्रिकम पूछा, यस टेल मी अबाउट अर्जेंटिकम नाइट्रिकम. रट्टा तुम्हारा हो रहता था. अर्जेंटिकम नाइट्रिकम इज हरी वरी करी. व्हाट इज दिस? यू नीड टू नो व्हाट इज हरी वरी करी. हरी मीन हरी, डूइंग एवरीथिंग इन हरी, विथ फुल ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. होगा कि नहीं, खाना फटाफट खाएंगे. वरी, ऑलवेज वरिंग, मे आई क्रॉस दैट ब्रिज. फियर ऑफ हाइट्स. भाई मुझे अगर अर्जेंटिकम नाइट्रिकम को बड़ा एक पोजीशन हाई मिला ना तो भी वो करने की हिचकिचाता है, क्योंकि उसको लगता है माँ कसम, फियर ऑफ हाइट में हाई पोजीशन में अगर कुछ हो तो मैं तो गया, मुझे कुछ नहीं होगा, खलास. आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म इन दैट पोजीशन. ये जो हाई पोजीशन है ना, हाई पोजीशन में इसलिए फियर ऑफ हाइट्स है कि ऊपर से नीचे देखने को, यानी मैं क्लास 1 ऑफिसर अगर बन गया पोजीशन तो मुझे और काम होगा, फिर मैं कैसे मैनेज करूंगा, ये किसी ने कुछ बोल दिया तो कहेगा नहीं होगा. एंग्जाइटी. तो ट्रेन है 7 बजे का, 6 बजे बैठ के बैठेगा, क्यों? नहीं मिस हो गया तो, बीच में कुछ हुआ तो, लफड़ा हुआ तो, ये नहीं. एंग्जाइटी फॉर टाइम इज सेट. एंग्जाइटी के टाइम थर काट के रात भर, पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करेगा, बाद में टेंशन में रहेगा. पहले रात भर पूरा साल भर पढ़ाई करना, isn't it? और जब 10th में उसको 90-95 मिलते, बहुत अर्जेंटिकम बनते कैसे बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा. अगर आपसे मुझे अपेक्षा भी है ना तो भी अर्जेंटिकम बन सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरे को 10th में 98 मिला, तो 10th सो इजी थी. 12th में देखा, अरे फिजिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये क्या है, अरे वेक्टर्स, ये क्या है, हालत खराब हो जाती है. तो सब लोग हाँ 10th में 98, 12th में 95, इधर 90 में 59 के भी बांधे तो एंग्जाइटी चालू हो जाएगी, फीलिंग चालू होगा, कॉन्फिडेंस लैक ऑफ चालू होगा. तो ये
जर्नी होती है. दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द माइंड, बॉडी एंड द सोल एक्सेस ऑफ अर्जेंटिकन नाइटिंगेल. दिस हरी वरी एंड करी, फ्रिवलस करके एक रुब्रिक है अर्जेंटिकन. खाना भी ना खाता है वो बिंदास, मीठा मीठा, बस जलन होता है, जलन होता है. मुझे हाँ कि नहीं मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं गुलाब जामुन नहीं खा लूंगा, मैं गोलगप्पे नहीं खाऊंगा, नहीं खा. सामने गोलगप्पा आया, खा लिया, जलन हो गया, शी मैंने क्यों खाया, मैं फिर से खाएगा, फिर से. तो एब्जॉर्ब भी होता है इसी चीज में, नहीं करने का फिर खा भी सकते हैं. अंडरस्टैंड, ये अर्जेंटिकन का खासियत है. तकलीफ होने के टाइम हाँ नहीं खाऊंगा, उसमें वो देखते रहेगा, प्लेट में देखते रहेगा, ऐसा एब्जॉर्ब हो जाएगा. नहीं मेरा फास्ट है अर्जेंटिकन. बिकॉज कंट्रोल है ही नहीं, किसी चीज में नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं, कंट्रोल नहीं, करेज नहीं किसी चीज में, लेकिन बोल वचन होता है. दिल एक कहता है, दिमाग एक कहता है, कंफ्यूजन में रहता है हमेशा, इर्रेजोल्यूशन. हम लोग जब एक रेमेडी पढ़ते हैं, दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ अर्जेंटिकन नाइटिंगेल, द रेप्यूडिएटेड फीलिंग, द क्रेडुलस, बहुत कुछ है रेमेडीज में, लेकिन हम लोग वो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत टाइम लगता है. और आप लोग क्या करते हो, 10-12 मिनट हो गया, चेंज स्वाइप कर देते हो. तो वी वांट यू टू understand the whole remedy and watch till the end of the video. This is how we understand Argenticum nitricum, just a glimpse of Argenticum with the mind, body and the soul axis. So, or Vishaka, if you want to say anything about this remedy, and you can just. Yeah, actually Argenticum nitricum ऐसा होता है ना, पळ काढणे म्हणतो ना, तो पळ काढतो, त्याला माहिती आहे, ही नोज व्हेरी वेल. चालेल, मला पळ काढणं म्हटलं तरी चालेल, म्हणजे काही लोकांना नाही कळलं तरी, पण तो शब्द है. हाँ, तो पढ़ काढ़ता तो सिचुएशन से वो भागना चाहता है क्योंकि उसको पता है वो नहीं कर पाएगा, तो वो ढूंढते रहता है बहाने कि कैसे इसमें से निकल जाऊं मैं. सो इस सब के चक्कर में वो अर्जेंटिकम बनते ही जाता है, धीरे 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 धीरे. क्या बात है, क्या बात. उसकी जर्नी स्टार्ट होती है वहां से. सही. एस्केप अटेम्प्ट्स टू ऐसा रूब्रिक है उसमें भी. विंडोज फ्रॉम. ओह माय गॉड, ये समझा क्या रूब्रिक? एस्केप अटेम्प्ट्स टू फ्रॉम विंडो, यानी पतली गली से घुस जा, पतली गली से एस्केप करना. नॉर्मल डोर है ना, तो उसमें से निकलता नहीं है, पतली गली से निकल जाना. एस्केप अटेम्प्ट्स फ्रॉम विंडो. माय गॉड, विंडो यानी क्या करेगा उन्हें, यानी सीधा ना डायरेक्टली रिफ्यूज भी नहीं करेगा. मुझे नहीं करने क्योंकि मेरा सर दर्द है. मुझे करना था, लेकिन देखो ना, मुझे आई वांटेड टू वॉश द वेसल्स, लेकिन देखो ना सब पूरा रैश आ गया, तो मेरे को हाथों में ना मेहंदी लगी हुई है. नहीं मेहंदी नहीं, क्या ये लगा है, तो मैं कैसे करूंगा, नहीं होगा मुझसे नहीं होगा. एस्केप अटेम्प्ट्स टू फ्रॉम विंडो, पतली गली से भाग जाना. This is how. Please don't forget to like, subscribe and share and comment. कमेंट तो मैं आपका सबका पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कमेंट पढ़ना. Thank you all and love you all.